بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ مکمل تختی سیکھ لی تھی کہ تختی کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ مکمل حروف تہجی کو ہم نے سیکھا تھا، اور مکمل حروف تہجی کو ہم نے سیکھ لیا کہ کہاں سے کس طرح سے حروف نکالے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم ہر ایک حروف کی پہچان کرا لے کہ حروف کی کیا پہچان ہے۔ بیچ میں سے پوچھا جائے کہ یہ کون سا لفظ ہے، یہ کون سا لفظ ہے، یہ کون سا لفظ ہے، تو ہم کو اس کی پہچان ہو جانی چاہیے۔ ہاں، مکمل پہچان ہو جانی چاہیے کہ یہ حروف یہ ہے، یہ حروف یہ ہے، یہ حروف یہ ہے۔ جب مکمل حروف آ جائیں گے تو انشاءاللہ اگلا جو سبق آئے گا، اگلا جو اسٹیپ آئے گا، انشاءاللہ وہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم آگے کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا سب کے اندر اکھے حروف تھے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا الف، با، تا، ثا، جیم، حا، کھو۔ اب یہاں جو ہم پڑھیں گے وہ اکھے حروف کے آدھے حروف ہیں، اس کا کٹنگ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن شریف کے اندر جو حروف لکھے گئے ہیں وہ مکمل تختی کے ہی حروف ہیں، لیکن ایک حروف سے دوسرا حروف ملتا جلتا ہے۔ تو اب ملانے کے لیے سب حرفوں کو آدھا کر دیں گے، سب حرفوں کو آدھا کر دیں گے۔ جب سب حرفوں کو آدھا کر دیں گے تو ملانا آسان ہو جائے گا، ملانا آسان ہو جائے گا، اس لیے ہم سب حرفوں کو آدھا کرتے ہیں۔ ہم نے تختے کے اندر پڑھا تھا سب سے پہلے الف کا آدھا نہیں ہے، الف ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الف ہی اکھا ہوتا ہے، اس کا آدھا نہیں ہے۔ آگے دیکھو، ہم نے آگے پڑھا تھا یہ ہے با۔ اب با کا آدھا اس طرح سے آئے گا جو ہم نے نیچے لکھا ہے، یہ با ہے، با کا آدھا با۔ آگے تا، یہ ہے تا، اور تا کا آدھا تا، اس طرح سے آئے گا۔ آگے یہ ہے مکمل سا، کیا ہے مکمل سا، اور سا کا آدھا اس طرح سے آئے گا۔ ہاں، یہ سب آدھے حروف ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے ہے جیم، اور جیم کا آدھا اس طرح سے آتا ہے۔ یہ سب شکل ہم کو ذہن کے اندر بٹھا لینی ہے کہ آدھے حروف کون کون سے آتے ہیں۔ یہ جیم ہے، یہ جیم پورا مٹکے کی طرح ہم نے جو پڑھایا تھا پہلے، یہ مٹکے کی طرح ہے، لیکن اب اس کا جیم کا آدھا اس طرح سے ہو جائے گا، یہ ہے جیم۔ آگے دیکھیں، آگے یہ مکمل ہے ہا، کیا ہے مکمل ہے ہا، اس کو گلے میں سے نکالیں گے، مکمل ہا۔ اب ہا کا آدھا اس طرح سے آئے گا، اس طرح سے ہا کا آدھا آئے گا۔ یہ شکل ہم کو ذہن میں برابر بٹھانی ہے، نہ آوے تو اس کو مکمل سمجھنا ہے اور مکمل رٹنا ہے۔ اس کے بعد ہا کے بعد ہے یہ خو، اور خو نقطے والا آتا ہے۔ خو کیسا آتا ہے؟ نقطے والا خو آتا ہے۔ اب خو مکمل ہے، اکھا ہے، لیکن اب خو کا آدھا اس طرح سے آئے گا۔ ہاں، یہ آدھے اس لیے یہ حروف ہے، میں نے کہا کہ ایک حروف کو دوسرے حروف سے ملانے کے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن شریف کے اندر اکھی تختی نہیں آتی، قرآن شریف میں اکھی تختی نہیں آتی، بلکہ جو حروف ہوتا ہے، مثال کے طور پر تا ہے، اب تا کو ملانا ہے ہاں سے تو آدھے حروف آئیں گے۔ مثال کے طور پر با ہے، با کو ملانا ہے کھو سے تو آدھے حروف ملیں گے، جوائننگ ہوں گے، پھر جا کے وہ مکمل الفاظ بنیں گے۔ مکمل کیا بنیں گے؟ الفاظ بنیں گے، مکمل جملہ بنیں گے، مکمل پھر وہ آیت بنے گی، پھر انشاءاللہ روانگی کے ساتھ ہم پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے آدھے حرفوں کو برابر ذہن نشین کر لینا ہے۔ آگے دیکھو، آگے یہ ہے دال اس طرح سے آتی ہے، یہ ہے اکھی دال، اور آدھی دال اس طرح سے آئے گی۔ ہاں، یہ آدھی دال، یہ ہے آدھی دال، اکھی دال، آدھی دال۔ آگے دیکھیے، یہ ہے اکھی دال، دال کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے، یہ ہے اکھی دال، اکھی دال اس طرح سے آئے گی، اور آدھی دال اس طرح سے آئے گی۔ ہاں،
ये है आधी दाल। ये दाल और दाल को बराबर मुकम्मल याद रखना है। आगे देखो, आगे रो आता है लेकिन हमने रो लिखा नहीं है, इसलिए कि रो और जा दोनों एक ही तरह होता है और रो के अंदर नुक्ता नहीं होता, जा के अंदर नुक्ता होता है। अब रो होगा तो रो का आधा इस तरह से आएगा, इस तरह से भी आता है और बाज मर्तबा ऐसा ही आ जाता है, कभी छोटा आ जाता है। हाँ, इस तरह से भी रो आ जाता है और नुक्ता लगाएंगे तो जा बन जाएगा। ठीक है, आगे है जा। जा के ऊपर एक नुक्ता आता है, जा झटका लगाकर पढ़ेंगे, दोनों दांतों को मिलाएंगे और बीच के अंदर जुबान रख के झटका लगाएंगे, ये है जा। और जा अक्खा है और उसका आधा जा इस तरह से आएगा। आगे देखें, आगे है ये सिसोटी की तरह हम सीन बनाएंगे, सीन। हाँ, सिसोटी की तरह सीन। ये सीन अक्खी है, कैसी है सीन? सीन मुकम्मल अक्खी है और उसकी आधी सीन इस तरह से आएगी, उसकी आधी सीन इस तरह से आएगी। आगे देखो, ये है बड़ी शीन, उसके ऊपर 3 नुक्ते लगे हुए हैं। कितने नुक्ते? 3 नुक्ते लगे हुए हैं। ये बड़ी और अक्खी शीन है और उसके नीचे जो शीन है वो आधी शीन है। और निकालेंगे किस तरह से? दोनों दांतों को मिलाएंगे, शीन मुकम्मल नहीं मिलाएंगे बल्कि बीच में से थोड़ी सी जगह रखेंगे और जुबान को बीच में रखेंगे। शीन शीन, जुबान थोड़ी सी ऊपर उठाएंगे ताकि मुकम्मल शीन अदा हो, शीन। और इसके नीचे है आधी शीन। आगे देखो, आगे है सौद। आगे क्या है? सौद। इसको भी सिसोटी की तरह ही बजाएंगे और पढ़ेंगे, लेकिन मुकम्मल घोल पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे सौद। और ये अक्खा सौद है। कैसा सौद है? अक्खा सौद है और उसका आधा इस तरह से सौद आएगा। ये आधा सौद है, आधा। हाँ, ये अक्खा सौद है और ये आधा सौद है। अब सौद के आगे है वोद, उसको कहेंगे वोद। और ये वोद हमारे बाई की तरफ जुबान की करवट और दाढ़ों की चढ़ होनी चाहिए, वहां जुबान लगाएंगे तो वोद मुकम्मल अदा होगा। ये है वोद और ये वोद अक्खा है। वोद कैसा है? पूरा मुकम्मल अक्खा है और उसके नीचे वोद आधा है, आधा वोद इस तरह से आएगा। हाँ, ये शक्ल अगर मुकम्मल जहन में समझ में आ गई तो आगे इंशाअल्लाह हमको पढ़ना बहुत आसान होगा। ये है वोद। अब वोद के आगे है आइन, जो हलक और गोगले के अंदर से निकलेगी, जिसको हम कहते हैं आखिरवा हिस्सा, आखिरवा हिस्सा, उसको कहते हैं आइन। और आइन का आधा इस तरह से आएगा। क्या आएगा? आइन का आधा इस तरह से आएगा। ये है आइन और उसका आधा है, ये है आइन। उसके बाजू में है, ये है गोइन। क्या है? गोइन। और गोइन के ऊपर नुक्ता आता है। गोइन के ऊपर क्या आता है? नुक्ता आता है। ये है मुकम्मल गोइन, अक्खी गोइन। और उसकी आधी गोइन इस तरह से आती है, देख लो, इस तरह से उसकी आधी गोइन आती है। आगे देखो, आगे है, ये है फा। फा एक नुक्ते वाला आएगा, उसको कहेंगे फा, उसको कहेंगे फा। और फा ये अक्खा है, मुकम्मल है, पूरा है और उसका आधा फा इस तरह से आता है, उसका आधा फा इस तरह से आता है। आगे देखें, आगे है ये कौफ, उसको मुंह भर के गोल मुंह करके पढ़ेंगे, कौफ। उसको क्या पढ़ेंगे? कौफ। और ये अक्खा कौफ है और आधा कौफ इस तरह से आता है, आधा कौफ इस तरह से आता है। बल्कि आधा कौफ और आधा फा दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन फा में एक नुक्ता आता है और कौफ में 2 नुक्ते आते हैं। अब उसमें से एक नुक्ते को हटा दो तो दोनों फा बन जाते हैं, और यहाँ एक नुक्ता है, दूसरा नुक्ता लगाओ तो कौफ बन जाता है। तो हमको ये ख्याल रखना है कि फा में एक नुक्ता आता है और कौफ के अंदर 2 नुक्ते आते हैं। कितने नुक्ते आते हैं? कौफ के अंदर 2 नुक्ते आते हैं, इसलिए कि दोनों आधे एक ही जैसे दिखते हैं। कुरान शरीफ में दोनों आधे एक ही जैसे दिखेंगे, सिर्फ नुक्तों का फर्क रहेगा कि फा में एक नुक्ता आता है और कौफ के अंदर 2 नुक्ते आते हैं। आगे देखो, ये है कौफ और ये है छोटा काफ, जो मुंह खोल के बराबर पढ़ेंगे, काफ। क्या पढ़ेंगे? काफ। और ये इसके नीचे आधा काफ है। कैसा काफ है? ये आधा काफ है। आगे देखो, ये है लाम। क्या है? लाम। और ये लाम मुकम्मल है, अक्खा है और उसके नीचे ये आधा लाम है, आधा लाम। हाँ, किस तरह से? आधा लाम, अलिफ की तरह, और इस तरफ से यूं लिट्टी खींच लेने की तो आधा लाम हो गया।
आगे देखो ये है मीम, कैसे है मीम, दोनों होठों को मिलाएंगे और मजबूती के साथ मिलाकर छोड़ देंगे, मीम मीम, ये अक्खी मीम है और आधी मीम इस तरह से आएगी, ये है आधी मीम, ये है आधी मीम। आगे देखो, आगे है ये नून, क्या है नून, और नून के बीच में एक नुक्ता आता है, नून के बीच में एक नुक्ता आता है, इसलिए ये नून, ये अक्खा नून है और आधा नून इस तरह से आएगा, आधा नून इस तरह से आएगा। इसके अंदर मेरे भाई और मेरे अजीजों, इसके अंदर दूसरे भी हुरूफ बनते हैं, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। जैसे मिसाल के तौर पर इसको बा बनाना है, बा, तो ऊपर का नुक्ता बुझा देंगे और नीचे नुक्ता लगाएंगे तो बा बन गया। अब इसका ता बनाना है, ता, तो नीचे का नुक्ता बुझा दिया और दो ऊपर नुक्ते लगा दिए तो बन गया ता। अब उसका था बनाना है तो ऊपर तीसरा नुक्ता लगा दिया तो ये बन गया था। तो इस तरह से उसके 4 हुरूफ बनते हैं। कितने हुरूफ बनते हैं? 4 हुरूफ बनते हैं। बा भी बनता है, ता भी बनता है, सा भी बनता है और बीच में एक नुक्ता रखो तो नून भी बनता है। हमको यहाँ नून बनाना है, नून। यही शक्ल के 4 हुरूफ बनते हैं, उसको अपने ज़हन के अंदर याद रखिए। ये है नून, अक्खा नून इस तरह से आएगा और आधा नून इस तरह से आएगा। आगे देखो, ये है छोटी हा, एक है बड़ी हा और ये है छोटी हा। जो बड़ी हा गले में से निकलती है और छोटी हा आहिस्ता से हमको गले में से निकालनी है, हा। ये है छोटी हा और छोटी हा के अंदर ये मुकम्मल हा, अक्खी हा है, पूरी हा है और ये छोटी हा है। ये कैसी है? उसकी आधी हा है, उसकी आधी हा है। आगे देखिए, आगे है ये हमजा, क्या है? हमजा, हमजा है ये। अब याद रखो, हमजा के अंदर मैं आपको एक नुक्ता बताता हूं। देखो हमजा इस तरह से आएगा, हमजा किस तरह से आएगा कि उसका मुंह टेढ़ा होगा, उसका मुंह टेढ़ा होगा, उसका मुंह सीधा नहीं होगा। अगर उसका मुंह सीधा है तो ये आधा आइन बन जाएगा, इसलिए कि आइन भी इस तरह से दिखता है और हमजा भी इस तरह से दिखता है। तो आइन का मुंह सीधा आता है, आइन का मुंह सीधा आता है और हमजा का मुंह टेढ़ा आता है। और आइन ये आधा आइन है और ये हमजा मुकम्मल हमजा है। दोनों के अंदर फर्क इतना है, आइन का मुंह किस तरह से आता है? आइन का मुंह सीधा आता है और हमजा का मुंह किस तरह आता है? हमजा का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, थोड़ा सा क्रॉस होता है। तो ये हमजा है और उसका आधा हमजा इस तरह से आएगा। एक शक्ल बनाएंगे और शक्ल के अंदर हमजा आएगा। बाज मर्तबा कभी शक्ल भी आती नहीं है, बाज मर्तबा हमजा के अंदर कोई शक्ल आती नहीं है, बल्कि छोटा सा हमजा होता है। तो छोटा आधा हो या अक्खा हो, दोनों एक ही तरह दिखते हैं और बाज मर्तबा इस तरह से शक्ल आती है तो आधा उसका ये हो जाता है। आगे देखो, आगे है ये या, क्या है? या। और या ये अक्खी है और आधी या इस तरह से आती है, आधी या इस तरह से आती है। मैंने आपको पहले ये बताया कि नून, या, ता, बा, सा, इस तरह से अब 5 हुरूफ बनेंगे। कितने हुरूफ बनेंगे? 5 हुरूफ बनेंगे। ये सिर्फ नुक्तों का फर्क है, शक्ल एक ही तरह की रहेगी। नीचे 2 नुक्ते रखें तो या बन जाएगी, ऊपर 2 नुक्ते रखें तो ता बन जाएगी, नीचे एक नुक्ता रखा तो बा बन जाएगा, ऊपर एक नुक्ता रखा तो नून बन जाएगा, ऊपर 3 नुक्ते रखें तो सा बन जाएगा। इस शक्ल के 5 हुरूफ बनेंगे और कुरान मजीद के अंदर ये आधी आधी शक्ल कई मर्तबा आती है, आधी आधी शक्ल कई मर्तबा आती है। तो नीचे 2 नुक्तों का फर्क है। अगर नुक्ते समझ में आ गए, ये 2 नुक्ते हैं तो या बनेगी, ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ता, ऊपर 3 नुक्ते हैं तो सा, नीचे एक नुक्ता है तो बा और ऊपर एक नुक्ता है तो नून। ये हमारी तख्ती मुकम्मल हुई। हमने पहला अक्खी तख्ती पढ़ी, मुकम्मल तख्ती पढ़ी। अब दूसरी मर्तबा जो हमने ये तख्ती पढ़ी है, मुकम्मल भी है और उस मुकम्मल का, उस पूरी तख्ती का आधा भी हमने बनाया है कि आधे हुरूफ किस तरह पढ़ने हैं। अब हमको आधे हुरूफ ध्यान नशीन कर लेने हैं। इंशाअल्लाह आधे हुरूफ आ गए तो आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह हम उसको जल्द से जल्द पढ़ने वाले बनेंगे।